Hello, and welcome to this lecture on features of membership functions. Membership functions are used in fuzzy logic or fuzzy inference systems to represent the fuzzy sets. They are basically a graphical representation of the fuzzy set. Apart from that, they are used to map the universe of discourse to the degree of membership. So ये चीज़ें हम मेंबरशिप फंक्शन की डेफिनेशन में देख चुके हैं. अब आज हम देखेंगे कि एक मेंबरशिप फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या हैं या फीचर्स क्या हैं. सो एज यू कैन सी यहाँ जो मेंबरशिप फंक्शन है ये हमारा एक ट्रैपेजॉइडल मेंबरशिप फंक्शन है. ट्रैपेजॉइडल मेंबरशिप फंक्शन में ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज सेड टू बी द कोर ऑफ द मेंबरशिप फंक्शन. हाउ डू यू डिफाइन दिस मैथमेटिकली? कोर क्या है? जिसमें डिग्री ऑफ मेंबरशिप म्यू ए एक्स हमारा डिग्री ऑफ मेंबरशिप रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर ए हमारा फजी सेट है. टाइल नोटेशन इसको क्रिस्प सेट से डिफरेंशिएट करता है और डिग्री ऑफ मेंबरशिप जिसे हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो ये मान लीजिए एक्स हमारा कोई वेरिएबल है. सो वो जो भी वेरिएबल है यहाँ पर उसकी क्रिस्प वैल्यूज हैं, इनको हम मैप कर रहे हैं ऑन टू द स्केल 0 to 1 विच इज गिविंग यू द डिग्री ऑफ मेंबरशिप. सो एक्स वैल्यू एंड कॉरेस्पॉन्डिंग म्यू ए एक्स की वैल्यू ये हमारा फजी सेट डिफाइन करता है. तो जब हमारी डिग्री ऑफ मेंबरशिप 1 है तो इन सारी एक्स की वैल्यूज के लिए फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हमारा डिग्री ऑफ मेंबरशिप 1 है. नाउ व्हाट डज दैट मीन? कि जो भी वेरिएबल है दैट कंप्लीटली लाइज इन दैट सेट or it has got a complete membership. अगर हम बोलें कि we have a set of अगर हम क्रिस्प सेट की बात करें, रियल नंबर्स, या हम इंटीजर्स की बात करें, या हम इवन नंबर्स की बात करें, और सेट में 2, 4, 6 वैल्यूज हैं, तो ये कंप्लीटली हमारे सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स में आ जाएगा. सो दैट मीन्स कंप्लीट मेंबरशिप. सपोर्ट क्या है? सपोर्ट is those values on the universe of discourse जिनके लिए degree of membership is greater than 0. So ये जो dotted vertical lines हैं, they are indicating that for these particular values the degree of membership, those values of x for which degree of membership is greater than 0, ये support represent करती हैं. और जो हमारी boundary है, which is the part, this part is the boundary, again this part is the boundary, which is the corresponding values on the x-axis जिनके लिए degree of membership 0 से 1 के बीच में lie कर रही है. So इन values के लिए और इन values के लिए. So they are having a partial membership, यानी कि ये values जो x-axis पे हैं ये किसी एक fuzzy set को भी belong कर सकते हैं और दूसरे को भी belong कर सकते हैं. Now there are some other things related to the fuzzy sets which we can talk about. That is normal fuzzy set. हम किसे बोलेंगे? So normal fuzzy set is a fuzzy set where at least one element x in the universe of discourse whose membership value is equal to unity. So अगर हम इस membership function को देखें तो यहाँ पर ये membership function जो कि triangular membership function है, यहाँ पर ये particular value of x, इसके लिए डिग्री ऑफ मेंबरशिप हमारी 1 है. Whereas ये b में जो हमारा फजी सेट है या हमारा मेंबरशिप फंक्शन है, इस मेंबरशिप फंक्शन में ऐसी कोई भी x की वैल्यू नहीं है जिसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग म्यू ए एक्स की वैल्यू 1 होगी. सो मेंबरशिप फंक्शन में कम से कम एक x वैल्यू के लिए अगर डिग्री ऑफ मेंबरशिप 1 है तो इट इज़ अ नॉर्मल फजी सेट, अदरवाइज इट इज़ अ subnormal fuzzy set. Then what are convex fuzzy sets and non-convex fuzzy sets? So membership values, now as you can see the membership values are strictly monotonically increasing or strictly monotonically decreasing. Monotonically means कि एक particular note पे sound बढ़ता जाता है, that is monotonically. और so this here you can see that here our membership function is such that these for increasing value of x के लिए हमारा mu बढ़ता जा रहा है, या increasing value of x के लिए हमारा mu decrease होता जा रहा है. So it is either monotonically increasing or monotonically decreasing.
or strictly monotonically increasing, then strictly monotonically decreasing with increasing values of elements in the universe of discourse. और अब यहाँ तक ये हमें क्लियर है कि values on this x-axis they represent elements in the universe of discourse. This is the entire universe of x. ठीक है, तो इस चीज को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर x पे हमारी कोई वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग, यहाँ पर अगर हमारी वैल्यू ये म्यू ए एक्स है, ठीक है, अगर हमारी ये वैल्यू हमारी म्यू ए एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये वैल्यू हमारी वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग है, और ये वैल्यू हमारी जेड के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, तो दिस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ म्यू एट वाई, इट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू, राइट, मिनिमम ऑफ जो वैल्यू एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग है और जो वैल्यू जेड के कॉरेस्पॉन्डिंग है, इन दोनों के मिनिमा से ग्रेटर या बराबर होनी चाहिए. So such a set is said to be, or such a membership function, or such a fuzzy set, you can call this as a convex fuzzy set. और साथ में आप यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ पर इसे normal fuzzy set भी बोल रहे हैं. So this fuzzy set is basically convex as well as normal fuzzy set. तो जो हमारे convex या non convex set हैं, ये हमारे normal या सब normal भी हो सकते हैं. अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये नॉन कॉन्वेक्स सेट है. इस नॉन कॉन्वेक्स सेट में हमारी वैल्यूज x बढ़ने से म्यू ए एक्स की वैल्यूज बढ़ रही हैं, फिर कम हो रही हैं, फिर अगेन बढ़ रही हैं, फिर कम हो रही हैं. सो इट इज नॉट फॉलोइंग अ कंटिन्यूटी एज पर दिस डेफिनेशन. इसलिए सच अ सेट इज अ नॉन कॉन्वेक्स फजी सेट. ऑल्सो ये नॉन कॉन्वेक्स है लेकिन नॉर्मल भी है, बिकॉज यहाँ पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारी 1 है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी वैल्यू हमारी डिग्री ऑफ मेंबरशिप की 1 है. सो दिस इज नॉन कॉन्वेक्स, एट द सेम टाइम ये नॉर्मल फजी सेट भी है. सो वी हैव सीन कि नॉर्मल फजी सेट क्या है, सब नॉर्मल क्या है, कॉन्वेक्स क्या है और नॉन कॉन्वेक्स क्या है. इनके अलावा ये एक दो टर्म्स और हमें जानना जरूरी है, वो यानी हाइट ऑफ मेंबरशिप फंक्शन हम किसे कहेंगे. तो जो भी किसी मेंबरशिप फंक्शन में हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हम हाइट ऑफ मेंबरशिप फंक्शन कहेंगे. सो द मैक्सिमम वैल्यू फॉर मेंबरशिप फंक्शन इन अ फजी सेट, तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हमारी हाईएस्ट वैल्यू है उसे हम दैट इज 1 इन दिस केस. क्रॉसओवर पॉइंट ऑफ अ फजी सेट. क्रॉसओवर पॉइंट क्या है कि जहाँ पर भी वो x वैल्यू, ठीक है, जिसके लिए हमारी डिग्री ऑफ मेंबरशिप 0.5 है, दैट फॉर्म्स द crossover point. So an element in the universe of discourse for which a fuzzy set has a value equal to 0.5 is called a crossover point of a membership function. तो ये हमारा crossover point हो गया x1 और x2. ये हमारे crossover points हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी degree of membership 0.5 है. So we have done a little bit of these terms related to fuzzy sets and membership functions, in addition to the features of the fuzzy set, fuzzy membership function, which include your core, boundary and support. Then we talked about कि हमारा convex set क्या है, non-convex क्या है, normal fuzzy set क्या है और subnormal fuzzy sets क्या है. Thank you.